गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आप लोग के मार्क्स कैसा है बोलिए ना कोई भी। मुनान कितने मार्क्स है यार फिजिक्स में? सर मेरे को 100 आए सर। कई को? कम आए ये टाइम सर। कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर दिया था सर मैं बीच में जल्दी में। हाईएस्ट 150 है सर, 147 कुछ है। अब किसको? कोई बच्ची को है सर। अच्छा साजिद सर साजिद नहीं लिखे थे सर। कई को? नहीं मालूम सर। अपने को खाने पीने से टाइम नहीं मिलता, नहीं करेंगे। कहाँ है साजिद, कहाँ है? घर पे है सर। कई को? सर हाँ सर। हाँ अब जो बोले करेक्ट बोले आप। सच नहीं। हाँ ठीक है सर। और बॉयज में बाकी के लोग अभी भेज रहा हूँ सर मार्क लिस्ट आपको। कल 27 से आता हूँ मैं 3-4 दिन कैंपस को। 27, 28, 29 हुआ तो 3 दिन आता हूँ मैं। आप लोग जब तक श्रीजन के मेटेरियल ले लेके जो भी टॉपिक्स हो गए वो करते रहना। और जिस दिन मैं आया उस दिन पूरा खाली फिजिक्स ही करते रहेंगे। बॉटनी जूलॉजी पूरा बाजुक, केमिस्ट्री भी बाजुक 1-2 दिन के लिए। ओके सर। 27 से मिड टर्म एग्जाम्स है मेरे को, तो आई विल बी हैविंग ओनली 1 क्लास इन द कैंपस, सो बाकी का टाइम आई विल बी लिटिल बिट फ्री। So I'll try to see that I'll try to come from 27th along with Ali sir. So I'll spend some time with there for 3-4 days. अगर हुआ तो बाकी के लोग भी आप लोग आ सकते हो, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी आप लोग पूरे क्वेश्चंस कर सकते हो, डॉट्स क्लैरिफिकेशन खत्म कर लेंगे। और थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स लिक्विड्स भी जब तक हो जाएगा इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है यस सर। चलो, कल कहाँ तक हुआ था बेटा क्लास? देखो एक बार जल्दी से। अल्फा इन फ़ारेनहीट और अल्फा इन सेंटीग्रेड के आप रिलेशन दिए थे सर, वहां तक हुआ था। अच्छा, प्रॉब्लम भी कराया था शुरू में? जी हाँ सर, आप प्रॉब्लम्स कर रहे थे। चलो, in the class I've been told you that coefficient of expansions of a material will depend upon what beta? Nature of the material and the scale of the temperature is being used. Okay ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो बेटा जल्दी से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ expansion is independent of dimensions, is independent of dimensions of materials, dimensions of materials initially, that means delta T up to 100 degrees centigrade, up to your 100 degrees centigrade, coefficient of your linear expansion, यानी expansions are independent of what? Dimensions of your materials part of relation. अगर हम लोग expansions लिख रहे हैं बेटा बेसिकली, बताओ कैसे लिखेंगे जल्दी से हम लोग? expansion अगर हम लोग लिख रहे हैं बेसिकली, expansion, yesterday I told you how to write the expansions, that is delta L is equals to L into alpha into delta T. Expansion will depend on what? Initial dimensions, nature of material and as well as of your delta T. उसी तरह से देखो डेल्टा ये
will be equal to A into beta into your delta T. Same way delta V. Delta V is equal to A into gamma into your delta T. Okay. So what I can say right now here, expansion depends on expansion depends on initial dimensions. देखो initial dimensions देखो delta L is depending on L, delta A is depending on A, delta V is also depending on A. So expansion will depend upon your initial dimensions, comma, nature of material, nature of your material, and temperature difference. And your temperature difference. Very, very important point for competitive examination. Expansion is depending upon what? Initial dimensions. It is also depending upon the nature of material and also temperature difference. Whereas coefficient of expansion is independent of the dimensions of material initially up to what temperature beta? Delta T is equals to 100 degrees centigrade. अगर हम लोग फ्रैक्शन के बारे में बात करें, so if is asking about your fraction, कैसे लिखेंगे कोई बता सकता है क्या? Fractional changes मतलब strain, change in length by original length, change in area by original area, change in volume by original volume, that are all called as what? Fractional changes बेटा. तो first one देखो, अगर मैं लिख रहा हूं delta L by your L is equals to how much बेटा? Is equals to your alpha into your delta T. The same way delta A by your A is equals to how much for me? Beta into your delta T. Delta V by V is equals to what for me? Gamma into delta T. That means fractional change will depend upon, fractional changes depends on, कहाँ depend होता है बेटा जल्दी से बताओ. It depends upon the nature of material. It depends upon your nature of material. It depends upon nature of material. It depends upon your nature of material. It depends upon your temperature difference. And is also independent of initial dimension. क्या कहीं पर initial dimension पे depend कर रहा है? No. Initial dimensions. Clear? So fractional change is depending only upon alpha, beta, and gamma are temperature differences, and it is independent of initial dimensions. He may ask you. Particulation that fractional change will depend upon what? Nature of material, will depend upon your temperature difference, and it is independent of your initial dimensions. अगर percentage changes लिखना है तो कैसे लिखोगे? जल्दी से बताओ. Percentage changes. Delta L by L into 100. Yeah, so it is delta L by L into 100 से multiply कर दो. So that is equals to your 100 into alpha into delta T. ठीक है ना? उसी तरह से delta A by your A into your 100 is equals to your 100 into beta into your delta T. In the same way, delta V by V into your 100 is equals to your 100 into this one is gamma into your delta T. So this will be the percentage changes, isn't it? So we got the values right now for fractional changes. We got it for your percentage changes, and we also talking about your expansions. अगर expansions के बारे में बात कर रहे हो, so expansion depends upon the initial dimension, nature of material, and temperature difference. Whereas fractional depends upon nature of material, delta T, and it is independent of what? Initial dimensions. Percentage इसको क्या करना है? Into 100 multiply कर लो, that will give me the answer for the given conditions. Clear है? Sure. Next one. कीप इट डबल स्टार मार्क. थोड़ा अगर पेपर टफ है तो इसको लिए कंडीशन में लगाना पड़ता है जहां पर अपने को थोड़ा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है बेटा. अगर आप लोग को आ रहा है तो कर लो, नहीं बोले तो आप लोग खाली सुन के बाजू को रख सकते हैं इसको. सो फॉर लार्ज चेंजेस इन टेम्परेचर, फॉर लार्ज चेंजेस इन योर टेम्परेचर लिख रहा हूं मैं, यानी ग्रेटर देन 100
मान के चलो अल्फा इज इक्वल्स टू सम ए नॉट इनटू योर टी, वेयर ए नॉट इज योर कांस्टेंट, वेयर ए नॉट इज इक्वल्स टू योर कांस्टेंट। तो जब क्या करेंगे, देन विल बी यूजिंग इंटीग्रेशन फॉर्मूला बेटा, इंटीग्रल ऑफ योर डीएल डिवाइडेड बाय योर एल इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ योर अल्फा इनटू योर dt। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर है T2 और इसका इनिशियल लेंथ है L1 और इसका इनिशियल लेंथ है L2, ठीक है ना। सो इंटीग्रल ऑफ dl, सो कोई बता सकता है कि इंटीग्रल ऑफ 1/l इंटू dl कितना होता है? इंटीग्रल ऑफ योर 1/l इंटू dl कितना होता है? इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू dx कितना होता है बेटा? इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू dx इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? ln x। इंटीग्रेशन करवाया था मैंने। इंटीग्रल ऑफ योर 1/l इंटू dl विल बिकम फॉर मी हाउ मच बेटा? दिस विल बिकम फॉर मी ln ऑफ योर l, और लिमिट्स बन जाएगा L1 टू योर L2, that is equals to alpha constant है, integral of dt is nothing but of your t, temperatures will be from T1 to your T2. So if I substitute the limits right now in this one, ln of in the place of L, it is upper limit L2, ln of your L1 is equals to alpha into upper limit minus lower limit. So this will become for me ln of your L2 divided by your L1 is equals to alpha into your, alpha की वैल्यू कितनी है मेरे पास? A naught, ए नॉट इंटू टी, सॉरी तो यहाँ पर स्टेप मैंने गलत कर दिया, तो यहाँ पर होना चाहिए इंटीग्रल ऑफ योर dt के पास क्या हो सकता है, देखो जल्दी से बताओ। t²/2। हाँ तो यहाँ पर मैंने इसको और कम कर दिया था, तो ये हो गया इंटीग्रल, अल्फा की वैल्यू कितनी है? ए नॉट इंटू योर टेम्परेचर टी इंटू योर dt, और लिमिट्स है यहाँ पर T1 टू योर T2, तो ए नॉट को बाहर निकाल दो। So it is your integral of t into your dt. Limits are from your T1 to your T2. So this will be equal to your a naught. Integral of t into dt कितना बनेगा बेटा? Integral of t into dt is how much for me? T square divided by 2. Limits will be equal to T1 से लेके T2. तो ये बन गया मेरे पास a naught by 2 into upper limit minus lower limit. So it is a T2 minus of your T1 square. So ये हो गया ln of your L2 by your L1 का कंडीशन। क्लियर है? Yes sir. Isn't it? So ऐसा करना है बेसिकली, अगर लेंथ वगैरह दे दिया तो यू कैन सिंप्लीफाई एंड डू द प्रॉब्लम, अदरवाइज ये आप लोग छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा अगर क्वेश्चन हायर लेवल है वेयर इंटीग्रेशन इज बीन अप्लाइड, सो यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट फॉर द गिवन कंडीशन, वरना यू कैन जस्ट टेक द लाइट एंड जस्ट रिमेंबर द मेथड एक बार, उसके बाद छोड़ दो बेसिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। चलो सर ये Yes, sir. लॉग करता, हाँ तो ये अगर लॉन निकाल रहे तो एक्सपोनेंशियल पे आ जाएगा बेटा। सर लॉन को लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक्सपोनेंशियल आ जाएगा ना, ये पूरा एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। L2 by L1 is equals to exponential to the power of a naught by 2 T2 minus T1 whole square आ जाएगा। लॉन निकाले तो एक्सपोनेंशियल आ जाता बेटा। लॉन ऑफ योर x is equals to सम है समझो, so x will be equal to your x निकाल रहे तो एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ सम वैल्यू आ जाता, ठीक है। यस सर। अगर इसी का मैं एग्जांपल एक करा दूं क्या, छोटा सा क्वेश्चन करवा दूं मैं आपको, तो आपको इजी हो जाएगा। तो एक बार मैं एक छोटा सा एग्जांपल करा देता हूं। देखो मान के चलो अल्फा इज इक्वल्स टू a into your t नॉट, सेम क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है। a नॉट इज अ कांस्टेंट, द लेंथ ऑफ द वायर, the length of wire at 0 degree centigrade is L. Find the temperature at which its length becomes 2L. तो लिमिट चेंज हो जाएगा यहाँ पर खाली, तो क्या हो जाएगा, तो जल्दी से इंटीग्रल ऑफ योर dl डिवाइडेड बाय योर l, यहाँ पर इनिशियल l है, उसके बाद जा रहा है 2l को, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a नॉट इनटू t इनटू योर dt, लिमिट इज फ्रॉम योर t1 टू योर t2। सो ये कितना हो जाएगा, ln ऑफ योर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ, सो दिस वन इज 2l डिवाइडेड बाय योर l, that is equals to a naught is out, integral of t into dt will become for me t square divided by your 2, because t1 is at 0 degree centigrade and t2 is equals to your t, तो ये l और ये l चले गया, so this one is your ln of your 2 is equals to your
ए नॉट इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो मुझे चाहिए क्या टेम्परेचर, तो ये कितना बन जाएगा 2 इधर चले जाएगा, तो दिस वन इज योर ln 4 इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू टी स्क्वायर, यानी आंसर बन गया है मेरे पास t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर ln ऑफ योर 4 डिवाइडेड बाई योर ए नॉट। सो दिस विल बी योर टेम्परेचर। छोटा क्लियर है? Yes, sir. चलो, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा अगर हाई लेवल आ गया तो इसको आप लोग कंसंट्रेशन करो, वरना इसको आप ऑलमोस्ट ऑल ओमिट कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो इसको भी एक बार आप लोग पढ़ने की कोशिश कर लो बेसिकली, ठीक है ना। अदरवाइज यू कैन ओमिट फॉर द नीट एग्जाम के लिए, इतना वाला तो जरूरत नहीं है। अगर बाय मिस्टेक आ गया तो कर लो, नहीं बोले तो जस्ट कीप इट वंस, एक बार पढ़ लो, बाजू रख दो बेसिकली, ठीक है ना। चलो, कीप ए नोट हियर राइट नाउ बेटा। देखो बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। The solids which expands equally, यानी delta L by L into your 100 is same in all directions, अगर expansion same है, यानी अल्फा ऑफ योर x इज इक्वल्स टू अल्फा ऑफ योर y इज इक्वल्स टू अल्फा ऑफ योर z। दे आर कॉल्ड, कोई बता सकता है क्या? लॉन्ग टर्म के बच्चे बता सकते हैं। दे आर कॉल्ड एज व्हाट? आइसोट्रोपिक solids, isotropic solids। So what are the isotropic solids beta? The solids which expands equally in all the direction, जिसका अल्फा x is equals to अल्फा y is equals to अल्फा z है, they are called as of your isotropic solids part of relation। The solids which are having different linear coefficients are called as of what beta? Anisotropic solids। Examples for that one is nothing but of your crystal। So the solids having different linear expansions, are called anisotropic substance, anisotropic solids। Examples are crystals, ठीक है। So what are the anisotropic solids beta? Anisotropic solids are nothing but the solids which have your different linear coefficients in your different directions are called as of your anisotropic solids part of relation। The best example for the are crystals। तो इसमें देखो कैसे लिख सकता हूं मैं, क्रिस्टल्स के लिए क्या हो जाएगा? अल्फा x might be equal to अल्फा y, but अल्फा y is not equal to your अल्फा z। और ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा x is not equal to your अल्फा y and अल्फा y is also not equal to your अल्फा z। So I can write here right now, we know the relation right now for the relation, gamma will be equal to your alpha of your x plus of your alpha of your y plus of your alpha of your z। ये हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी हम लोग खाली याद रख लो बेसिक कंडीशन हम लोग के लिए। Anisotropic solids मतलब any two may be equal and the third one may be your unequal, or all the three may be also your unequal part, यानी alpha x is not equal to alpha y and alpha y is also not equal to your alpha z part of a relation। Is it clear for everyone? So what do you mean by isotropic solids? What do you mean by an anisotropic solids? The solids which expands equally in all directions are called as of isotropic. The solids having different linear coefficients in the different directions are called as of your anisotropic solids। The example for that one is nothing but of your crystals part of relation। The next one of this one is relation between coefficients of isotropic solids। So we need to calculate the relation between your coefficient of your isotropic solids के लिए। मान के चलो देखो बेसिकली मेरे पास एक क्यूब है,
like this. ठीक है, so मान के चलो L1 is equals to 1 meter, A1 is equals to 1 meter square because area है ना, and initial volume is equals to 1 meter cube. At what temperature? At T1 degree centigrade. At a T1 degree centigrade. Now I'm increasing the temperature. When you increase the temperature, what happens is right now the dimensions of that one is also increasing. So this will be increasing right now to say, for example, new dimensions like this. तो ऐसा थोड़ा increase हो गया, ये ऐसा थोड़ा increase हो गया, ठीक है ना. So this one is attaching this one is attaching like this is attaching this one, this is attaching like this. Okay, temperature of this one is right now T2. At T2 degree centigrade, मतलब क्या, delta T is equals to T2 minus T1. T1 कितना हो जाएगा बेटा, 1 degree centigrade. At 1 degree centigrade, यानी T2 minus T1 will be equal to how much for me? At 0 से मान के चलो, so initially मैं कितना ले रहा था, 0. Initially at your 0 degree centigrade से मैंने इसका temperature increase कर दिया 1 degree centigrade. तो T2 कितना आ जाएगा बेटा, T2 की वैल्यू है 1, T1 is nothing but 0, so T2 will be equal to your what, 1 degree centigrade. So increase in length कितना बनेगा, L2 minus of your L1 is equals to L1 into alpha into delta T. So delta T is nothing but T2, so L1 is nothing but how much for me here, L1 कितना है मेरे पास, 1 है, तो L2 minus this one is 1, this one is 1 into alpha, temperature is also 1, यानी L2 कितना बना, L2 is equals to, ये हो गया अल्फा, ये माइनस उधर चले जाएगा तो प्लस बन गया. द सेम वे A2 कितना बन जाएगा बेटा, A2 is equals to अल्फा प्लस ऑफ योर 1 होल स्क्वायर. उसी तरह से V2 कितना बन जाएगा, फाइनल वॉल्यूम अल्फा प्लस ऑफ योर 1 होल क्यूब बन जाएगा, क्योंकि एरिया ना बेटा, एरिया इज इक्वल्स टू L2 स्क्वायर, वॉल्यूम V2 इज इक्वल्स टू योर A2 स्क्वायर, सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू योर A2 इनटू योर L2, तो दैट विल बी इक्वल टू योर अल्फा प्लस 1 होल क्यूब. समझ में आया, ये इनिशियल 1 मीटर था, एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर था, वॉल्यूम वाज 1 मीटर स्क्वायर, तो फाइनल लेंथ कितना बनेगा मेरे पास, अल्फा प्लस 1, तो एरिया कितना बन जाएगा, L2 स्क्वायर ना, तो अल्फा प्लस ऑफ योर L, वॉल्यूम विल बिकम फॉर मी हाउ मच, L क्यूब, दैट मींस अल्फा प्लस 1 होल क्यूब पार्ट ऑफ रिलेशन. क्लियर है सभी को, इज इट क्लियर, isn't it? चलो, let us try to call relation between alpha and beta. Relation between alpha and beta. So let us try to talk about the relation between alpha and beta. Beta का relation देखो, बताओ जल्दी से क्या, beta is equals to A2 minus of A1 divided by your A1 into temperature difference delta T. तो बीटा will be equal to A2 कितना है बेटा, जल्दी से देखो, A2 वैल्यू इज अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये हो गया अल्फा प्लस 1, दिस वन इज योर होल स्क्वायर, माइनस A1 इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, A1 कितना है देखो, A1 इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, सो आई एम राइटिंग दिस वन एज 1 डिवाइडेड बाय दिस वन इज आल्सो 1, टेंपरेचर डिफरेंस इज आल्सो इक्वल टू 1, सो दिस इज द इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, बीटा इज इक्वल्स टू, दिस इन द फॉर्म ऑफ A plus B होल स्क्वायर, सो A plus B होल स्क्वायर इज नथिंग बट A square plus B square plus 2AB, तो ये कितना बन जाएगा, 2 अल्फा प्लस ऑफ योर अल्फा स्क्वायर, ठीक है. सो बीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरे पास, 2 अल्फा प्लस ऑफ योर अल्फा स्क्वायर, एज अल्फा इज वेरी स्मॉल, as alpha is very small, square of it will be still small, square of it will be still very small, very small. So we can neglect alpha square. अगर अल्फा स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिए तो कितना आ रहा है देखो, बेसिकली बीटा विल बी इक्वल टू 2 times of your alpha. So relation between alpha and beta is how much? Beta is equals to 2 times of your alpha. Is that clear? Yes, Is that clear? Is it? ये अगर LT के बच्चे हैं तो डायरेक्टली इतना याद रख सकते हो, सेकंड ईयर के भी बच्चे डायरेक्टली याद रख सकते हो, ओनली फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ये डेरिवेशन मैंने करवाया है बेसिकली कि अपने को आया कैसा, बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा. तो लेकिन अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए खाली अल्फा बीटा बोलने के साथ ही अपने को क्या समझ में आ जाना, बीटा इज इक्वल्स टू 2 times ऑफ योर अल्फा बोल के याद रख लो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम्स. उसके बाद हम लोग जाते हैं रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट वन इज रिलेशन बिटवीन
alpha and gamma, alpha and as well as of your gamma. Okay, चलो मेरे पास गामा का वैल्यू है फॉर्मूला, गामा इज इक्वल व्हाट बेटा, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय V1 इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। V2 की वैल्यू देखो कितनी है बेटा, V2 वैल्यू इज अल्फा प्लस 1 होल क्यूब, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ A प्लस B होल क्यूब, सो इट इज अल्फा प्लस 1 होल क्यूब माइनस V1 कितना आप देखो जल्दी से बेटा, V1 वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, दैट मींस दैट विल बी इक्वल टू योर 1 डिवाइडेड बाय V1 इज 1, टेम्परेचर डिफरेंस भी मेरे पास है 1, तो ये बन गया मेरे पास अल्फा प्लस 1 होल क्यूब का फॉर्मूला। अल्फा प्लस 1 होल क्यूब का फॉर्मूला कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ योर अल्फा प्लस ऑफ योर 3 into your alpha square plus this one is your alpha cube. Clear है? Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes sir. So अगर मैं क्या कर सकता हूँ बेसिकली, जल्दी से बताओ, बेसिकली इसमें क्या क्या नेग्लेक्ट कर सकता हूँ मैं, बिकॉज अल्फा इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब एंड 3 अल्फा स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, isn't it? So what we can do, we can neglect 3 अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब, क्योंकि और मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करोगे तो बहुत छोटा टर्म हो जाएगा, तो गामा विल बी इक्वल टू मच बेटा 3 टाइम्स ऑफ योर अल्फा, 3 टाइम्स ऑफ योर अल्फा, सो गामा इज इक्वल्स टू योर 3 टाइम्स ऑफ योर अल्फा पार्ट ऑफ रिलेशन। या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो अल्फा इज गामा इज इक्वल्स टू दिस वन इज योर अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, लिख सकता हूं क्या? 3 अल्फा को मैंने अल्फा प्लस 2 अल्फा लिखा है, because I already know that 2 alpha is how much for me? Beta. So I can write this one as alpha is gamma is equals to alpha plus of your beta. Gamma is equals to your alpha plus of your beta part of relation. Is that clear for everyone? Yes, sir. Yes, Isn't sir. it? एक बार फिर से एक बार देख लो बेटा। So relation between isotropic solid के लिए बात कर रहा हूँ। Isotropic मतलब अगर आप छोटा भी इंक्रीज इन टेम्परेचर दोगे तो लेंथ में, ब्रेथ में, हाइट में इंक्रीज सेम है। तो इनिशियल लेंथ है 1 मीटर स्क्वायर, इनिशियल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, इनिशियल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 0 to T1 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 कितना बनेगा बेटा, डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस ऑफ योर T1, T2 इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, सो डेल्टा T विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी 1, so L2 minus L1 increase in length will be equal to how much, L2 minus L1 is equal to L1 into alpha into delta T, L1 is 1 alpha, delta T is 1, so L2 how much I got, alpha plus 1, A2 will become how much for me, L2 square, V2 will become for me how much, L cube, so I got L2 A2 V2 part of relation. From that one, using the standard formulas, I simplified the relation between alpha and beta, that is beta is equals to how much I got right now here, beta is equals to 2 times of your alpha, and next one is nothing but gamma is equals to 3 times of alpha, and the relation between them is gamma is equals to your alpha plus of your beta part of relation. Is it clear for everyone? यहाँ तक clear है सभी को? Yes, sir. चलो यहाँ पर एक देख लो, for isotropic solids, isotropic solids मतलब क्या बेटा, isotropic solids मतलब क्या, अल्फा बीटा गामा सेम, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा कितना आ जाएगा, कोई बता सकता है क्या, दैट विल बी इक्वल टू 1:2:3, ठीक है, alpha beta is 2 times of alpha, gamma is 3 times of alpha, so ratio is how much for me, 1:2:3, or else I can write here alpha by 1 is equals to beta by 2 is equals to gamma by 3, लिख सकता हूं मैं ऐसा, so from this one beta is equals to 2 times of alpha and gamma is equals to 3 times of alpha, isn't it? So beta is 2 times of alpha, gamma is equals to 3 times of alpha, so I can write here beta is also equal to alpha की वैल्यू क्या मैं इसमें से निकाल सकता हूं, alpha value is gamma by 3, so it is 2 times of your gamma divided by 3, so beta is equals to your 2 times of your gamma divided by 3, clear है? So for isotropic solids, alpha is to beta is to gamma is 1:2:3, or alpha by 1 is equals to beta by 2 is equals to gamma by 3. तो इन दोनों का रेशियो निकालो तो बीटा इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, एंड दोनों का रिलेशन निकालो तो गामा इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ योर अल्फा, सो बीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ योर गामा बाय 3 भी लिख सकता हूं मैं बेसिकली। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes. Yes, sir.
उसके बाद हम लोग बात करते हैं अनाइसोट्रोपिक सॉलिड्स. फॉर योर anisotropic solids, what will be the relation between them? For anisotropic solids, what is the condition I told you beta? Alpha x is equals to your alpha y हो सकता है, and this is not equal to your alpha z. यानी ये हो गया मेरे पास x axis और ये हो गया मेरे पास y axis और ये हो गया मेरे पास z axis, isn't it? तो इसकी वैल्यू अल्फा along your x axis यहाँ पर होगी, this is your alpha on y and this is your alpha in z. और ऐसा भी हो सकता है मेरे पास कि I can write this one condition, alpha x is not equal to your alpha y and alpha y is also not equal to your alpha z. तो मैं लिख सकता हूं जब गामा इज इक्वल टू, यहाँ पर गामा कितना है, देखो यहाँ पर गामा कितना है, गामा इज इक्वल टू कितना है, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा. अगर सेम नहीं है तो क्या लिखोगे, अल्फा ऑफ योर एक्स प्लस अल्फा ऑफ योर वाई प्लस अल्फा ऑफ योर जेड. लिख सकता हूं क्या मैं? यानी गामा इज इक्वल टू मच फॉर मी 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड. यानी अल्फा विल बी इक्वल टू मच फॉर मी 1/3 टाइम्स ऑफ योर अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड. ठीक है. उसी तरह से बीटा, बीटा विल बी इक्वल टू मच बेटा 2/3 टाइम्स ऑफ योर 2/3 टाइम्स ऑफ योर व्हाट गामा, है कि नहीं, दैट इज इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स ऑफ गामा. वैल्यू बोले तो क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड. आई कैन राइट लाइक दिस फॉर अनिसोट्रोपिक सॉलिड्स. ठीक है. यस सर. फिर से एक बार बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको ओवरकम कर देते हैं, सुनते नहीं है, लिखते नहीं है इसको. बेसिकली अगर कभी कभी 1-2 बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इसी पे क्वेश्चंस पूछा गया हुआ था फॉर अनिसोट्रोपिक के कंडीशन पे. तो यहाँ पर देखो कैसे लिख रहे हैं हम लोग, गामा इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड. गामा इज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दिस वन इज राइट नाउ फॉर मी दिस मच. बीटा इज हाउ मच फॉर मी 2 टाइम्स ऑफ गामा, तो 2 टाइम्स ऑफ ये गामा लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ योर गामा इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी 2/3 into alpha x plus of your alpha y plus of your alpha z part of relation. Clear है? Yes, sir. एक क्वेश्चन करो बेटा. Let us try to see whether you can able to do this question or not. चलो सभी लोग एक बार पेपर पे लिख के आप लोग आंसर बताइए. मान के चलिए we have got a crystal which has a linear coefficient in one direction. एक डायरेक्शन में एक लीनियर कोफिशिएंट है in one direction, that is 1 और 15 ले लो 1.55 को. So this is 15 into 10 to the power of -6 per degree centigrade. And in any direction यानी एक को छोड़ के मतलब एक्स एक्सिस को छोड़ के बाकी के दो. In any direction perpendicular to it, it has linear coefficient. It has a linear coefficient of 12 into 10 to the power of -6 per degree centigrade. Find the coefficient of volume expansion. ठीक है, जल्दी से ट्राई करो. मान के चलो I have got one in this direction, alpha 1. Perpendicular to it there is another one, alpha 2, and perpendicular to it there is another one, that is your alpha 3. इन दोनों के बीच में एंगल 90 होगी, 39 दोनों into के 10 बीच power में minus- एंगल 90 होगी, इन दोनों के बीच में एंगल 90 होगी. कितना होगा बेटा? 39 into 10 power -6. Very good. 39 into 10 to the power of -6. क्यों? Gamma is equals to alpha x plus alpha y plus alpha z. These two are same na beta. So this will be equal to alpha 1. Alpha y is also alpha 2. And this one is also your alpha 2. That means this is alpha 1 plus 2 times of your alpha 2. So ये हो गया मेरे पास 15 into, ये हो गया 15 into 10 to the power of -6 plus this one is 2 into, another one is how much for me? 12 into 10 to the power of -6. 2 into 12, 12 2s are 24, 24 plus 15. तो ये कितना आएगा बेटा? 39.
39 into 10 to the power of -6 per degree centigrade is your answer. Clear है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. आया सभी को? So this was about your story of your relation between alpha, beta and gamma, and also the isotropic and anisotropic solids part of relation. Is it clear for everyone? चलो next one लिख लेते हैं, applications. Yeah. Applications of expansion of solids. Applications of your expansion of solids. Expansion of solids. First one. रेलवे ट्रैक्स में अपनों को गैप्स मेंटेन करते हैं, याद है आप लोग को किसी को? Isn't it? So we know that a gap left between two successive rails के लिए to allow the expansion during summer. ठीक है ना? During summer. So gap will be left between two successive rails to allow the expansion during the summer. मान के चलो अगर L initial length है, L is equals to length of your each rail, and alpha is equals to your what? Coefficient of your linear expansion. Coefficient of your linear expansion of rod. Linear expansion of your rod, and delta T is your temperature difference. Delta T is your temperature difference. So this one is, say for example, a rod, and this one is also a rod like this. Railway track का एक पटरी ड्रॉ कर रहा हूं मैं, और ये हो गया इसका मीडियन पोजीशन. ये इनिशियल लेंथ L है, इसका भी इनिशियल लेंथ L है. तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, so this will be expanding इसके अंदर. So this is called as of your delta L. So delta L कैसे लिखोगे बेटा? Expansion between the rails will be equal to how much बेटा? Delta L, that is expansion between rails. Delta L is equal to how much for me? L into alpha into your delta T. So this will be the relation. ठीक है ना? चलो सेकंड एप्लीकेशन देखो बेटा. ये मेरे पास एक प्लेट है, मेटल प्लेट है बेटा. ये मेटल प्लेट है, इसमें मैंने एक होल कर दिया. मान के चलो इसमें एक होल है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने एक होल कर दिया, जिसके रेडियस से मान के चलो इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R1, और इसका रेडियस है R2. Okay, and the distance between this R1 and this R2 is equals to मान के चलो D, and it is made up of your coefficient of linear expansion alpha. Now I started heating. Now we started heating. इसको जब आप हीट करना शुरू करोगे, so when you start heating for this one, आप इसको जब हीट करना शुरू करोगे तो what happens, can you tell me? ये मेटल है ना बेटा, ये मेटल के वजह से ये मेटल प्लेट क्या एक्सपैंड होगा because of heating? Yeah. Isn't it? So what happens? R1 को क्या हो जाएगा, R2 को क्या हो जाएगा, D को क्या हो जाएगा? D remains same, R1 and R2 increases. और कोई? डी कम हो जाता सर. मतलब सर R1 R2 बढ़ता था, D कम हो जाता. वेरी गुड. और दोनों इंक्रीज हो रहे ना सर, तो D remains same. सी यार बेटा, R1 नो डाउट इंक्रीज हो रहा है, R2 नो डाउट इंक्रीज हो रहा है, और D भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये मेटल प्लेट इज एक्सपैंडिंग, बाहर जा रहा है. सो दिस इज आल्सो एक्सपैंडिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस इज आल्सो एक्सपैंडिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. तो इन दोनों के बीच की गैप भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी क्या है, एटम्स है ना, तो वो भी एक्सपैंड करेंगे.
ठीक है ना? Yes, sir. Isn't it? No, Assume like a point mass beta, because they are expanding in same direction. So कुछ direction में expand होंगे. ऐसा नहीं कि एक सामने एक पीछे. Everything will expanding in the same direction. Assuming it like at a point size. If point size increases, distance also increases. Okay? क्योंकि मेटल इंक्रीज हो रहा है, R1 इंक्रीज हो रहा है, R2 इंक्रीज हो रहा है, तो डिस्टेंस दोनों के बीच में भी इंक्रीज होगी. इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो और एक देता हूं, इसका भी आंसर एक बार ट्राई करो आप लोग. मान के चलो मेरे पास एक छोटा सा सर्किल है जिसका रेडियस है होल, जिसका रेडियस है R1. मैंने इसको हीट किया एंड इट हैज बीन कमिंग टू दिस वन. ये ऐसा बन गया और इसका रेडियस बन गया R2. So when heated R1 क्या होगा? कोई बता सकता है क्या? What happens to R1? What happens to R2? What happens to your R2 minus of your R1? अब यहां जरा सोच के बताओ. R1 डिक्रीज होगा और R2 इंक्रीज होगा. यू आर हीटिंग इट बेटा, ये पूरे एटम्स है, इंक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीज होगा. R1 also increases, भी इंक्रीज होगा. R2 also increases in backward. अगर ये दो इंक्रीज हो गए तो डिफरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा ना, इन दोनों का डिफरेंस भी इंक्रीज होगा. सर दोनों इक्वल इंक्रीज नहीं होता सर. क्योंकि डायमेंशंस डिफरेंट है ना बेटा. इसका डायमेंशन डिफरेंट है, इसका डायमेंशन डिफरेंट है. ये डिफरेंट एनर्जी लेगा, ये डिफरेंट एनर्जी लेगा. तो ये भी इस पे एक्सपेंशन है आउटवर्ड, इसमें भी एक्सपेंशन है आउटवर्ड. R2 इंक्रीज हो रहा है, R2 minus R1 is also increase. क्लियर है? Yes, sir. समझ में आई बात? हाँ सर. Isn't it? So in the application part, अगर एक प्लेट में दो होल्स है तो रेडियस R1 R2 increases, distance also increases. सर्कुलर में भी उतना ही, R1 increases and R2 also increases. ठीक है? Yes, sir. यस सर. और एप्लीकेशन से बेटा वो आप कल कर लेंगे. आज तक आप लोग इस पे जरा वर्किंग करना शुरू कर लीजिए और आज थोड़े असाइनमेंट्स मैं आपको भेजूंगा. यू ट्राई टू डू दैट असाइनमेंट्स ऑन योर थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है? और एप्लीकेशंस डेरिवेशन से बेटा बायोमेटालिक स्ट्रिप्स वगैरह बोल के, कंपोजिट रॉड्स वगैरह बोल के, वो कल की क्लास में हम लोग कर लेंगे. बाय टुमारो विल ट्राई टू कीप द फुल स्टॉप फॉर द थियरी ऑफ योर थर्मल एक्सपेंशन एंड नेक्स्ट सेक्शन विल ट्राई टू गो फॉर द न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन दिस टॉपिक. ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. ओके चलो, टेक केयर बेटा, बाय. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir.